Yes. Okay, so a very good evening, all of you. Welcome to the discussion of civil services को हम लोग कैसे crack करना है next 4 month में. I'll just tell you about the session before starting the session. So we have with us Amit Singh. Amit is basically a civil servant. Right now, he is Assistant Director, Administration in the Ministry of Defence. Amit जो है वो मेरे student भी रहे हैं पूरे पहले, and he has been in service from past 4 years. Amit will share his inputs, preparation से जुड़ी हुई inputs आपको देंगे, and as a mentor मैं तो regularly आप लोगों से मिलता रहता हूँ. हम लोग का जो communication होगा वो bilingual होगा, and we'll try to answer all the basic questions. Preparation से जुड़ी हुई जो होंगी, the focus would be specifically on the prelims examination. कि अगले 4 महीने में आपको prelims examination को निकालने के लिए क्या-क्या करना है, and Amit sir will give inputs regarding that. Now coming to हमारा जो starting का 30 minutes 35 minutes होगा वो सारा preparation strategy और उस areas पे होगा, and last के 10 minutes में मैं questions लूँगा आप सभी लोगों से. So I'll start over to Amit. First of all, a very welcome Amit to you. Thank you, sir, and I greet to all the students of my work. I said okay. So Amit अपनी बात जो है कहेंगे, और अमित now before starting the session मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा आप बताइए how has been your journey from an aspirant to civil servant. As an aspirant आपने जो शुरुआत की थी और आज एक civil servant हैं आप, almost एक लंबी journey preparation की थी, and after that from past 4 years in the service. So just share your journey in just a few minutes. The journey started like all average student from the status of uncertainty. Every time we have to be anxious about the result pre-RII, then we have to go for the again preparation for means, and it goes on. So journey from uncertainty to certainty, from student desk to office desk, and whatever we learn from here, I think the most educated journey of our life it is, and it will help all across the journey, even in the civil service. So basically, what we are aspiring for to serve in the administration, to have a little impact on where we can. That is the aspiration we all share. And there is some certain stress in society. So that's a different from student to a civil servant. It remains a very good journey and enriching journey. Okay. Sir. Okay, so अमित आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है. Students will be bilingual, ठीक है. And now as Amit ने discuss किया कि एक normal student की तरह he started, and today he is civil servant. तो वो journey अपने आप में ups and downs की थी, and naturally for every student जो selection पाना चाहता है, he or she has to go through the churning process. एक churning process होता है एक लंबा जिसमें ups and downs आते हैं. But I think what matters in the end is your perseverance, your input, your hard work. So I think every civil servant will share the same input with varying degree of their own experiences. But I believe that Amit ने जो आपसे discuss किया वो काफी हद तक जो है आपको समझ में आया होगा. Now before going to the next question, एक बहुत basic जो question students के मन में रहता है that preparation strategy. मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों से and every selected student या हर अच्छा aspirant जो है वो preparation strategy की एक उसकी होनी चाहिए. So अमित just share कि एक basic preparation strategy की insight अगर आपको देनी हो तो आप क्या दोगे from your own experience? When we start the journey for civil service, we start with the prelims level, and that is the most crucial level जहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती. The margin of error is very low, and the syllabus is very vast. Here we are supposed to cover up all the topics. So the first strategy is to cover all the basics from all the basic textbooks. Repeat as many times as possible. At least 3 times will make you confident. Like if you are going for the Lakshmikant for quality, go for at least 3 times. Same with the history and other subjects.
Then in the pre, there are some static portion and there are some dynamic portion. When I say static portion, it is like polity, history, geography, economy, environment, ecology, etc. When we go for the dynamic section, it remains the same topics, but their current orientation. When we look all these topics through the glasses of our news, current events, so we should focus 50% our energy on the static topics and 50% should be focused on the dynamic topics. Dynamic topics cannot be covered in total ever, but yes, we should target at least 30% of dynamic topics कि हम रोज अपडेट रहे न्यूज से, and news not all these politicals and local news, rather those news which have relevance with the topics and subject topics of the prelims. And the last portion of the study should be how we can execute the knowledge. I have known many of my friends who are very good students who know thoroughly the subject, but when it comes to cracking the examination in pre, they often fail. And because of the one basic error in their strategy, they don't focus on the execution part. I always say 50% is the preparation and 50% the execution. Now, when we say execution, so it has three aspects. One, when we choose a question, where accuracy should be good. Our accuracy should be at least 80% and above 80%. Let's suppose we go for 80 questions, then it should be at least 70% should be correct. So that's accuracy. And if we want to increase the accuracy, it means we have to go to the question thoroughly. Read each word properly, and if each word is correct in the prelims question, then the whole sentence is correct. I repeat, we have to focus on each word. What the UPSC question makers do, they just alter or make it wrong the one word of the whole sentence. In general, the sentence will look okay, correct, but since one word is not correct, the whole sentence becomes not correct. So read the questions twice along with the options. And if we go, and I suggest every student to go at least twice for each question, read the questions twice, so that you don't fall into the trap. Okay. So these are the basic study approaches and execution approaches I suggest. Okay. So I'll just summarize जो अमित सर ने अभी बोला. Now Amit said two things. The first, he said that preparation एक long journey है, but the problem where most of the students aspirants face, वो लोग दो लेवल पे काम करते हैं. सिर्फ प्रिपरेशन पे काम करते हैं, बट जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो अच्छे स्टूडेंट ही कर पाते हैं. He suggested that आप जब प्रिपरेशन करते हो तो उसके दो पार्ट होने चाहिए. One is the static area, other is the dynamic area. आप 50% टाइम अपना स्टैटिक और डायनामिक एरियाज पे फोकस करिए. Now students who do not know the static area वो एक सिलेबस का पार्ट होता है which will not change, that will remain standard or static. For example, आप Constitution of India पढ़ रहे हो, you are studying modern history, you are studying concepts of geography, physical geography, या फिर आप theories of environment पढ़ रहे हो, या फिर basics of economics पढ़ रहे हो, तो ये static areas होंगे, ये कभी change नहीं होंगे. So ये 50% टाइम आपका static areas पे जाना चाहिए. Dynamic areas which are linked with current. For example, अगर हम Constitution of India पढ़ते हैं बट उसका करंट से लिंक करे कुछ आता है तो वो डायनेमिक एरिया हो जाता है. इकोनॉमी का कोई कंसेप्ट पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आपने जीडीपी पढ़ा बट उसका एप्लीकेशन करंट कंटेक्स्ट में आता है तो वो डायनेमिक एरिया हो जाता है. सो आपका 50% टाइम डायनेमिक एरिया पे जाना चाहिए. इनफैक्ट जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो 4 महीने पहले ही अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में ये अप्रोच लेके आ जाते हैं, 50% स्टैटिक एंड 50% डायनेमिक. बट ये 50% ही प्रिपरेशन का पार्ट है, यानी आप जो पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ 50% है. नेक्स्ट 50% व्हाट अमित सर इज सेइंग दैट यू शुड फोकस ऑन एग्जीक्यूशन. अमित का कहना है कि आप एग्जीक्यूशन पे फोकस करिए और ट्राई टू मेक अ स्ट्रेटजी फॉर द एग्जामिनेशन. आपका स्ट्रेटजी क्वेश्चन सॉल्विंग पे होना चाहिए, एक्यूरेसी पे होना चाहिए. अगर आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका 70-75% करेक्ट होना चाहिए. बिकॉज एग्जामिनेशन में आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू हैव टू शो ऑन ग्राउंड कि आपका एग्जीक्यूशन कितना परफेक्ट है. So in that respect, what Amit is saying that you should focus on execution. और इसके बारे में डिटेल में अगले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट 4 मंथ में आपका स्ट्रेटजी रिवीजन का क्या होना चाहिए.
एज ही मेंशन्ड रिपीटेडली, इन्होंने 2-3 बार इस बात को कहा है कि रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। स्टूडेंट पढ़ते हैं बट रिवीजन नहीं करते हैं। एटलीस्ट 3 टाइम्स आपका रिवीजन होना चाहिए। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट को 4 to 5 टाइम्स बोलता हूँ। सो 3 टाइम्स मिनिमम रिवीजन होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन को क्रैक करने के लेवल पे जाना चाहते हैं। बिकॉज यूपीएससी को भी पता है, जो लोग क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, दे विल ट्विस्ट द स्टेटमेंट, दे विल कंटेक्स्ट सेम रहेगा बट वो स्टेटमेंट आपको अलग कुछ और नजर आएगा। सो यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, और जितना आपका अंडरस्टैंडिंग लूसिड होगा, कोहेरेंट होगा, कन्वर्जेंस होगा उसमें, जितना आप बिटवीन द लाइंस पढ़ पाएंगे, जितना एक्सप्लिसिटली आप चीजों को या इम्प्लिसिटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतने अच्छे से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। सो दैट विल बी द that would be the focus. मैंने I have taken the liberty to explain what Amit just now said. Amit, अगला जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली प्रीलिम से जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज दैट नेक्स्ट 4 मंथ में क्या करना चाहिए। एक एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है पिछले 6-8 महीने से, बट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट 4 मंथ स्ट्रेटजी। आप यू कैन टेक योर टाइम एंड टेल द स्टूडेंट्स इन डिटेल। When I remember, I quit the job in IBM and I started just 4 months back from the examination date. And I find 4 months time is very sufficient to cover all the topics of the prelims. So the strategies, we should just focus on the prelims. First, we should cover all the basics. We should, people say that we should not have over curiosity. There is a word in the public administration, categoric curiosity. आप दुनिया में हर चीज नहीं जान सकते. You have to know what is required. और हमारा टारगेट हमेशा यही होना चाहिए कि बेसिक्स और मीडियम क्वेश्चंस क्रैक हो हमसे. So many students do the mistake, they don't cover all the topics thoroughly. So my first suggestion is हर टॉपिक को आप एटलीस्ट बेसिक लेवल पे कवर करें. Every topic should be covered, not in the full detail, but at least basics cover होना चाहिए कि अगर उस टॉपिक से इजी और मीडियम क्वेश्चंस आए तो you should not miss it. Number 1. Number 2, we should have a revision strategy. लास्ट 2 दिन के अंदर सारे मटेरियल्स को कैसे रिवाइज कर पाएंगे, ये हमारे पास हमेशा थिंकिंग होनी चाहिए बैग में. So we should have a certain things in the mind, क्या रिवाइज करेंगे लास्ट में और कैसे रिवाइज करेंगे. ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द मेंटल इक्विपमेंट और कितनी मेमोरी है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है. एंड थर्ड, प्री के लिए आप डेली पर डे एटलीस्ट 50 to 100 एमसीक्यू सॉल्व करें. अगर आप 50 to 100 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और आपको एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस बहुत इजी हो गए, आफ्टर सॉल्विंग द एमसीक्यू जो पार्ट्स आपको नॉलेजेबल है उसको कहीं नोट डाउन करें, टर्न डाउन करें, so that आप उसको भी रिवाइज कर पाएं द फ्यूचर डेट. So go for the full. And fourth is just keep the momentum. Don't be too anxious. प्रीलिम्स के हफ्ते या महीने पर पहले we become too anxious, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है. We don't keep the cool. Keep the cool. Go through the basics. Revise as much as possible. Focus on the MCQs, and that MCQs will help in the execution part itself. और MCQ का भी रिवीजन करिए आप लोग, जो उसका हाईलाइटेड पार्ट है जो आप मिस करते हैं. So if we go for this now, I very full confident that हम 4 महीने में प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं. And especially I have interacted many guides and many civil servant mentors, but I found promoter strategy very coherent. So go for his suggestions, and we just listen the suggestions. We don't never follow it. So follow it, please. Okay, thanks Amit for the kind words. Now I'll just तो अमित सर ने बहुत क्लियर कट कहा. नेक्स्ट 4 मंथ की स्ट्रेटजी अभी क्या होनी चाहिए. नेक्स्ट 4 मंथ की स्ट्रेटजी, फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स. नाउ बेसिक्स क्यों करना जरूरी है, बिकॉज बेस बिल्डिंग अगर होगा तभी आप यू कैन गो विद हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस. तो बेस बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज, उनको थॉरली आप कवर कर लीजिए. द सेकंड पार्ट ऑफ द बेसिक्स जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर बेसिक से कोई सवाल आता है वो मिस नहीं होना चाहिए. यू कांट मेक अ मिस्टेक इन अ बेसिक क्वेश्चन, बिकॉज जो अच्छा एस्पिरेंट होता है कभी बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करता है. द एक्यूरेसी इन बेसिक क्वेश्चन शुड बी मोर देन 90%. 95% अगर हो जाए तो और भी अच्छा है. तो आपके बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहला पार्ट. दूसरा पार्ट,
द फोकस शुड बी ऑन सॉल्विंग एमसीक्यूज। आप पढ़ाई कर रहे हो बट आप टेस्ट कैसे कर रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही नहीं जा रही है। तो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट उनको लिस्ट करके उस पर आप एमसीक्यूज लगाओ, या एमसीक्यूज आपके अवेलेबल है उनको लगाओ, जितनी भी लगा सकते हो। 50 60 70 एमसीक्यूज पर डे के बेस पे तो अच्छा खासा एमसीक्यू हो जाता है। अगर आप लगा सकते हो तो दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। बट एमसीक्यूज लगाना सिर्फ एक पार्ट है, एमसीक्यूज का एनालिसिस सेकंड पार्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमसीक्यूज ज्यादा लगाते हैं बट एनालिसिस नहीं करते हैं। तो एनालाइज द एमसीक्यूज, उन एमसीक्यूज में फिल्टर करिए ऑप्शंस को, देखिए उसमें क्या ऑप्शन बनता है। उस ऑप्शन, उसके एमसीक्यू इन जनरल, उसके ऑप्शंस, आपको बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा। उसमें से अच्छे एमसीक्यूज आप फिल्टर कर सकते हो, दैट माइट बी 20% 30%, और उस पर आप री रिविजन में फोकस करिए। इसको बैकवर्ड लिंकेज मैं एज एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो बट बैकवर्डली लिंक करके देखो कि भाई एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं वो निकल रहे कि नहीं निकल रहे हैं, और निकल रहे तो एक्यूरेसी कहां तक जा रही है। तो स्ट्रैटेजी में बहुत बेसिक है, और हर एस्पिरेंट का अलग अलग जो है अप्रोच होता है। एमसीक्यू सॉल्व करना, उनको अच्छे से एनालाइज करना। मैं यूजुअली एमसीक्यूज को एनालिसिस के बाद मैं बोलता हूँ कम से कम 4 5 बार आप एमसीक्यूज को रिवीजन करिए एनालिसिस के बाद, दैट इज व्हाट आई सजेस्ट। लास्ट पार्ट जो अमित ने कहा है कि इसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी आखिरी का क्या होना चाहिए। आज आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, 8 आवर्स पढ़ रहे हो, बट रिमेंबर जो आप पूरे साल भर पढ़ते हो, आपको लास्ट के 2 दिन में 4 दिन में समराइज करना होता है, रिवीजन करना होता है। एंड हेंस यू शुड ऑलवेज हैव अ स्ट्रैटेजी इन योर माइंड कि मैं लास्ट 2 दिन में मैं कैसे रिवीजन करूंगा। बिकॉज प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा एरिया होता है, प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है, जनरल स्टडीज का स्पेशली बहुत सारे नए एरियाज आ रहे हैं। मेंस फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट प्रीलिम्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी जो है। आज के टेक्नोलॉजी की एज में इतना इंफॉर्मेशन है, जहां की आपके पास न्यूज़पेपर कंटेंट, फ्री वीडियोस, ये वो पीआईबी एंड ये 4 4 न्यूज़पेपर के लोग पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। बट उसे फिल्टर करके और कैसे आप एंड में रिवाइज करते हो वो बड़ा जरूरी है। इसीलिए पैरेलली, इनफैक्ट जो पिछला सवाल था उसमें अमित ने इस बात पे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया था कि आपका रिविजन का पार्ट, और मैं हमेशा एक बच्चों को एक छोटा रूल बताता हूँ कि 20 30% टाइम आपका अभी रिवीजन से स्टार्ट हो जाना चाहिए। दैट मींस अगर आप 10 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवीजन में अभी जाना चाहिए, सो दैट आप फाइनल डे के लिए कन्वर्ज और कंसोलिडेट आज से ही कर रहे हो। ये हम लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने भी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, अमित ने इंटरव्यू दे के सेलेक्ट हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज में फंसे नहीं है। मैंने जितनी बार दिया है मैं नहीं फंसा, अमित ने भी जितनी बार एग्जाम दिया वो कभी नहीं फंसा है इन द प्रीलिम स्टेज। तो हम लोग को पता है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजी जितनी सॉलिड होगी, आपकी एग्जीक्यूशन जितना परफेक्ट होगा, आउटकम जो है सिलेक्शन का उतना आपका प्रीलिम्स जो फर्स्ट हर्डल है उसको क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मेंस की स्ट्रैटेजी कुछ अलग होगी, दैट विल बी डिफरेंट एरिया, बट अभी का हमारा फोकस इन एरियाज पे होना चाहिए। द फर्स्ट इज कवर द बेसिक्स, सेकंड इज ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यूज, बी वेरी थरो विद एमसीक्यूज, उनका रिवीजन करना, बिटवीन द लाइंस पढ़ना, उसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को फिल्टर करना, उनको रिवाइज करना। एट द सेम टाइम जो लास्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है, और उसको एंड में कैसे आप क्लोजिंग कर रहे हो रिवीजन का, समराइजेशन या फिर कन्वर्जेंस कर रहे हो, वो आपका उस पर काम होना चाहिए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं, कोई रूल नहीं है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। बट एक अच्छा स्टूडेंट जब एग्जीक्यूट करता है तो समझ में आ जाता है कि कहाँ वर्क करना है, कहाँ वर्क नहीं करना है। दिस यू लर्न एंड विल यू ग्रो। जब आप खुद करेंगे तो यू लर्न एंड ग्रो विद योर स्ट्रैटेजी एज वेल। बट बेसिक्स और इनपुट्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको हर एस्पिरेंट से मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप मैंने जो है अमित की सारी बातों को समराइज कर दिया। अमित, जो अगला सवाल है मेरा, एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट फॉर एस्पिरेंट्स, वो ये है कि डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रिपरेशन आखिरी टाइम में। और आई विल फर्दर मेक द क्वेश्चन मोर क्लियर एंड एक्सप्लिसिट कि डूज एंड डोंट्स प्रिपरेशन में आखिरी का जो 3 4 महीना होता है, बहुत सारी मार्केट्स में नई नई चीजें आती हैं, बुक्स आते हैं, मटेरियल आती हैं, टेस्ट सीरीज आते हैं, गाइड्स आते हैं, समरीज आते हैं, नोट्स के समरीज आते हैं, नए नए ट्रिक बताए जाते हैं, जादू बताए जाते हैं कि एग्जाम निकल जाता है निकालने के लिए, कॉम्पेंडियम्स आती हैं, मैगजीन्स, ईयर का समराइजेशन मैगजीन्स आता है, और ये सभी का है, फेमस कोचिंग, नॉट सो फेमस कोचिंग, हम लोग भी कंटेंट उस तरह का बनाते हैं बिकॉज उस तरह की डिमांड रहती है बच्चों से। तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, जो कि एक सीरियस एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए।
एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन एक सेकंड। आगे हाँ अमित आ रही है आवाज अब। We are discussing about do's and don'ts, and in that aspect, I was very anxious कि कैसे किया जाए इसको। मैंने 4 बार prelims किए और I cracked always a very good marks in the prelims, always in the range of 140, and I have made the highest number at 156 out of 200. So once I experimented my methods, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया कि ये मेथड सबके लिए वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आई कॉन्स्टेंटली अचीव रिजल्ट्स फ्रॉम दिस मेथड। तो मैं डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक दिल्ली में है, एक आउटसाइड दिल्ली में है। फर्स्ट, जैसे सर बता रहे थे कि नंबर ऑफ मटेरियल्स आर फ्लोटिंग इन द एग्जामिनेशंस, नेवर गो फॉर द अनट्रस्टेड। आप बेसिक्स बुक्स से अच्छी कुछ भी नहीं है, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वो करना जरूरी है। करंट अफेयर के टर्म्स में आप एक किसी भी इंस्टीट्यूट का जिससे भी आप फॉलो करते हैं, स्पेशली ISH, और प्लस 1 मोर किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ले सकते हैं, सो दैट कहीं भी अगर एक चीज छूट रही हो दूसरे से कवर हो गई। तो करंट अफेयर फ्रॉम द टू सोर्सेज, ओनली 2 सोर्सेज, नॉट मोर देन 2। जो आपने सोर्सेज एक बार फाइनलाइज कर लिए, स्टिक टू दैट। डोंट कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, वो नहीं वर्क करता है, कभी नहीं वर्क करता है। हमें अपने मटेरियल्स लिमिटेड और ट्रस्टवर्दी रखने होते हैं। तो फर्स्ट डूज, आप सेलेक्ट करिए अपने मटेरियल्स को, उसको प्रॉपरली नोट डाउन करिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। डोंट्स, नेवर गो फॉर द अनट्रस्टेड स्नाइपेट्स हैं, ये बन गए वो बन गए। दैट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हर इंस्टीट्यूट चाहता है कि मेरे भी फ्लोट हो, आपके नंबर ऑफ सोर्सेज से मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, बट ट्रस्ट द वन इंस्टीट्यूट। आप उसके करंट अफेयर लीजिए, और जो बेसिक्स बुक्स हैं दे आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी। सेकंड पार्ट की रीजन तो पार्ट है ही, अपनी हेल्थ का भी अच्छा ध्यान रखिए। विदाउट अ गुड हेल्थ यू कैन नॉट गो द लॉन्ग जर्नी ऑफ सिविल सर्विस। तो एक मेडिटेशन या सॉन्ग जो भी आपको सूट करता है, आपको अपने आप को कूल रखने के लिए हमेशा अडॉप्ट करिए अपने डेली रूटीन्स में। थर्ड, एग्जामिनेशन के नाइट के बिफोर अच्छी स्लीप लीजिए और गो फॉर द वहां पे, सो दैट आप अपने बेस्ट में हो उस समय एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऑल दिस, बाय डूइंग ऑल दिस थिंग्स, एंड जो हमने स्ट्रेटजी बताई है, वी हैव शेयर्ड इट, आप और कोई भी एवरेज स्टूडेंट, आई थिंक एवरेज स्टूडेंट्स के चांसेस ज्यादा ब्राइट होते हैं सिविल सर्विस को क्रैक करने के देन द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स ना परसीवर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइक खरगोश और कछुए की कहानी है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है लेकिन कुछ दिनों में थक जाता है, जबकि ये सिविल सर्विस की जर्नी जो है एक कछुए की जर्नी है। यू हैव टू slowly move in the direction of your goal, but slowly, consistently, and through a long period of time. Okay. Thanks for the wonderful insight, Amit. तो अमित की सारी बातों को मैं quickly summarize करूंगा। पहली बात तो अमित has given attempt 4 times, and in all the 4 attempts उन्होंने prelims को निकाला है। Now again, मैं इस बात को फिर से repeat कर रहा हूँ। He has given 4 attempts, and all the attempts he has cleared the prelims. पहली बात। दूसरी बात, he has cleared the prelims with very high scores. जो prelims का जो कट ऑफ रहा है वो 105, 107 रहा है, बट इनका स्कोर हमेशा 140 प्लस रहा है with the highest of 156. So आप देखो कि आप अगर अमित सर के अगर आप इनपुट देख रहे हो तो उनका ये कहना है कि मेरा स्कोर एवरेज से 30%, 40% ऊपर है, कट ऑफ से 30% मैं ऊपर हूं, which is huge. तो and that is where he has एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी उनकी बनी हुई है और उस स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं। नेचुरली वो स्ट्रेटजी में डायनामिक एलिमेंट्स है, तभी वो टाइम टेस्टेड है। सो क्या किया, व्हाट आर द थिंग्स दैट ही डिड? पहला उन्होंने यही काम किया कि भाई डूज एंड डोंट्स, आप स्टिक टू द बेसिक मटेरियल। सेकंड इज गो विद अ क्रेडिबल सोर्स, कोई भी क्रेडिबल सोर्स है, मोस्टली जो नेम इंस्टीट्यूट्स हैं या कोचिंग्स हैं
जिनके आप सोर्स आपको लगता है क्रेडिबल है, उनको फोकस करिए। बट बिफोर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नोट्स, मटेरियल, फोकस ऑन स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक से कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लोगों को लगता है कि अरे इसका समरी पढ़ लेते हैं, बिपिन चंद्र का समरी पढ़ लेते हैं, इसका समरी पढ़ लेते हैं। तो समरी से एग्जाम नहीं निकलता है, क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल आ रहे हैं, बिटवीन द लाइंस आ रहे हैं। तो थरोनेस मोर होना बहुत जरूरी है। आप, इट इज नॉट अ फैक्चुअल एग्जामिनेशन, ये क्लर्क का एग्जाम नहीं है, ये बैंकिंग का क्लर्क का एग्जाम नहीं है, या जूनियर लेवल का कहीं एग्जाम है। दिस इज इट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री, जहां पे हम बेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया जो है उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं। बेस्ट माइंड्स कहने का मतलब, माइंड मतलब जो दिमाग चलता है वो नहीं, माइंड मतलब जो परसिवियर कर सकता है, इसके बाद पेशेंस हो। तो वो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला एस्पेक्ट की आपका बेसिक सोर्स होना चाहिए। आप इंश्योर करिए कि जो है उस सोर्स मटेरियल को जो फॉलो कर रहे हैं थरोनेस हो। तीसरा, करंट अफेयर्स में चूंकि बहुत सारा मार्केट में इंफॉर्मेशन फैक्ट्स अवेलेबल है, तो आप मैक्सिमम 2 सोर्सेस पे जाइए। और मैं हमेशा मैं भी यही बात कहता हूँ, गो विद वन स्टैंडर्ड सोर्स और दूसरे सोर्स से कॉम्प्लीमेंट करिए। एक ही चीज को 2 सोर्स से मत पढ़िए, बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। डुप्लीकेशन एफर्ट का होना सबसे जो है बिगेस्ट ब्लंडर एस्पिरेंट्स करते हैं, कि वो एक ही चीज को 4 जगह से पढ़ते हैं। तो आप जो है एक एक प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स को लेके आप 2 जगह से करंट अफेयर पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो परफेक्ट है, बिकॉज वो तो एनीवेयर इज समथिंग दैट वी विल ऑलवेज लुक एट टू। तो ये जो है डूज है। थर्ड एस्पेक्ट इज टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ, बिकॉज हेल्दी माइंड इज अ प्लेस वेयर योर आउटकम विल थ्राइव एंड सर्वाइव। एक और बहुत अच्छी बात अमित ने कही, एंड वो अमित ने कही, और ये मैं भी हमेशा बात करता हूँ कि ये एग्जाम जो है ये एवरेज लोग का भी एग्जाम है। एग्जामिनेशन इज अ ग्रेट लेवलर। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ दैट यूपीएससी एग्जामिनेशन इज अ ग्रेट लेवलर। वो सभी लोगों को एक लेवल पे लाके खड़ा कर देता है। जो एस्पिरेंट परसिवियर कर पाता है, इस जर्नी को मेंटेन कर पाता है, कछुए की जो बात कही कि कछुए की तरह आप सस्टेन कर पाते हो, परसिवियर कर पाते हो, पेशेंस है आपके अंदर, अपनी छोटे छोटे डेली स्ट्रगल्स को आप हैंडल कर पाते हो, वही इवेंचुअली जर्नी को जो है सक्सेस उसको मिलती है। टैलेंटेड लोग, और मैं आपको एग्जांपल मैंने बहुत लोगों का देखा है, आई हैव सीन टैलेंटेड पीपल फ्लंकिंग द एग्जामिनेशन। टैलेंटेड लोग फ्लंक करते हैं एग्जाम में, बट एवरेज एस्पिरेंट जो है वो ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। इनफैक्ट मेरा अपना एक्सपीरियंस है दैट 70-75% लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं, दे कम फ्रॉम एवरेज बैकग्राउंड इन दिस सिविल सर्विस। जो लोग बहुत एक्सेप्शनली टॉपर हैं, उनका पेशेंस नहीं होता है, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन, क्योंकि ये लंबी जर्नी होती है। सो दीज आर द डूज। डोंट्स के लिए बहुत सारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, गिमिक्स, मटेरियल ऑनलाइन फ्लोट कर रहा है, यूट्यूब पे फ्लोट कर रहा है, टेलीग्राम आजकल एक नया चैनल हो गया है, हर चीज अवेलेबल है। और बच्चों को क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक नया हॉबी स्टार्ट हो गया, इंफॉर्मेशन नोट्स गैदरिंग, वीडियो गैदरिंग एक नया हॉबी जो है पिछले 4-5 साल मैंने अमित देखा है, पिछले 4-5 सालों में नोट गैदरिंग, वीडियो गैदरिंग, टेलीग्राम पे चीजों को गैदर करना, लैपटॉप पे गैदर करना, ये एक नया हॉबी बन गया लोगों का। प्रिपरेशन करने के अलावा बाकी सारे काम हो रहे हैं, वो काम मत करिएगा। दैट इज अ एक्सट्रीम डोंट व्हिच वी वुड सजेस्ट फ्रॉम आवर एंड। ठीक है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा अमित, देन विल टेक द क्वेश्चंस। लास्ट 10 मिनट्स हम लोग क्वेश्चन लेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है वो प्रिपरेशन से जुड़ा नहीं है, बट ये आपका अपना एक्सपीरियंस है। हाउ हैज बीन लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? जिस दिन सिलेक्शन हुआ उससे आप, उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, और आज तक आपको क्या लगता है? जस्ट शेयर योर इनपुट्स। थैंक यू सर। बट मैं एक पॉइंट मिस कर गया और थोड़ा सा उस पर इन्फोसिस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर। 2015 के पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की स्ट्रेटजी कुछ और थी, एंड 2015 के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने की स्ट्रेटजी बदल चुकी है। वी हैव, दिस इज एग्जाम जहाँ पे आपको टूल्स एनालाइज करने होते हैं। 2015 के पहले न्यूज़पेपर को एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे अवेलेबल सोर्सेज नहीं थे, तो स्टूडेंट्स गो फॉर ना एटलीस्ट 2 आवर्स न्यूज़पेपर रीडिंग, और वो अपने नोट्स खुद बनाते थे, उस पर काफी वर्कआउट करते थे। बट इन द रिसेंट टाइम्स मैंने पाया, एंड आई जस्ट request Pramod sir to whether comment this or not, कि in the last 5 years हम न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट allot 30 minutes to 45 minutes on that, क्योंकि उसके जो स्नाइपेट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप दोबारा रिपीट मत करिए, जो सर ने बोला। सो मेरा across all the newspapers, just finish all the newspapers within 30 to 45 minutes. एंड इसके अलावा जो बाकी करंट अफेयर्स अवेलेबल है वो आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर के स्नाइपेट्स ही हैं। तो इन दैट सेंस न्यूज़पेपर की स्ट्रेटजी जो थी वो मैंने रिपीट किया।
जो प्रमोद सर का लास्ट क्वेश्चन था, लाइफ एज ए सिविल सर्वेंट, हाउ इट चेंज योर लाइफ। सी, फर्स्ट चेंज इज द हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आवर जॉब डिफाइन हाउ सोसाइटी लुक एट अस। देयर आर वेरियस जॉब्स, वेरियस एवेन्यूज जहां आपके पास बहुत सारे पैसे फ्लो करते हैं, and those people are coming in the civil service for money. This is not a very great avenue. This service will provide you a standard and respectable life. पैसा अगर चाहिए तो पैसे अदर प्राइवेट सेक्टर्स में अदर जगह पे, यहाँ पे आप रीजनेबल मनी आपको होगी जो आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, द रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी इज द ग्रेटेस्ट फ्रॉम दिस जॉब। वंस you go anywhere across the country and people know that you are a civil servant from such and such department, the way they look at you change suddenly. So आपकी बात लोग और प्रशासन दोनों सुनने लगते हैं। तो और of course the parents, family, all these people are very happy to crack the examination. और आपकी खुद की एक जो आपने सोचा है फुलफिलमेंट एक अलग खुशी देता है। तो लाइफ एज ए सिविल सर्वेंट इज गुड। इट्स अगर कोरोना में देखा जाए, कोरोना टाइम में, तो एक लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अनसर्टेनिटी। सिविल सर्विस और प्राइवेट सेक्टर में कोरोना टाइम से थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया कि यस, द जॉब इज नॉट द हाईएस्ट पेड बट इट्स मोर सिक्योर। आपको डे टू डे लाइफ में एंजाइटी नहीं क्रिएट करने देती है, अनसिक्योरिटी नहीं आती आपकी लाइफ में, एंड इवन इन दीज टफ टाइम्स यू कैन बी द हेल्पिंग हैंड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। So that is my the reply to how the life changes. Okay. Thanks Amit for the wonderful insight again. So Amit ने दो बातें कही। पहली बात कही जो उन्होंने पॉइंट को मिस कर दिया था न्यूज़पेपर रीडिंग की, एंड ही आस्क्ड माय इनपुट एज वेल कि 15 से पहले, और मैं खुद मैंने 2010-11 में एग्जाम दिया था, फिर बाद में एक बार और अटेम्प्ट मिला था। तो उस टाइम हमने इंटरव्यू दिया था। तो उस टाइम हमने जब एग्जाम दिया था तो हम लोग के टाइम वी डू नॉट हैड ऑप्शन ऑफ ऑन मटेरियल, नोट्स, डेली वीडियोस, स्निपेट्स। हम लोग के टाइम ये ऑप्शन नहीं था, और हम लोग को खुद रिगरसली अपने करंट अफेयर नोट्स बनाने होते थे, न्यूज़पेपर बनाना होता था, न्यूज़पेपर पढ़ना होता था। तो हम लोग को काफी रिगरस 2 घंटे का एवरेज एफर्ट था, और ये 2015 तक काफी स्टैंडर्ड प्रोसेस था विद ऑल द एस्पिरेंट जो सिलेक्ट हो रहे थे। बट पिछले 4-5 सालों में देयर हैज बीन अ प्लेथोरा ऑफ न्यू avenues where information is available, editorial analysis हो गया, डेली न्यूज मिल गए। तो मैं अमित की इस बात से अग्री करता हूं कि बहुत सारा कुछ आपको मिल रहा है आज, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा एक नया उसमें बात में ऐड करना चाहता हूं। ये स्ट्रैटेजी तब वर्क करेगी जब आप स्टार्टिंग का 5-6 महीने का प्रिपरेशन फेज को आप पास कर लेते हो, जब आपके बेसिक्स डेवलप हो जाते हैं, जब आपके कीवर्ड्स का नॉलेज आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है कंसेप्चुअली, देन आप यू कैन जज कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिल्टर करने के स्टेज पे पहुंच जाते हो। बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी सही नहीं होगा कि वो सीधा किसी का मटेरियल उठा के पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। बट वंस योर बेसिक्स आर डेवलप, व्हिच आई थिंक व्हिच विल टेक फर्स्ट 5-6 मंथ्स, उसके बाद आप एक बार आप फिल्टर कर लो इंपॉर्टेंट न्यूज को, आप उसको कहीं से एक प्राइमरी सोर्स से लेके आप वहां से ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो। बट बेसिक्स डेवलप होने के बाद जो एस्पिरेंट्स इस बार एग्जाम दे रहे हैं, आई बिलीव वो पिछले 6-8 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका बेसिक्स आई बिलीव काफी हद तक डेवलप्ड होगा। दे कैन गो विद अ स्ट्रैटेजी, और अपने करंट अफेयर का जो टाइम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको वो लिमिट कर सकते हैं, एंड दे कैन यूज दीज सोर्सेज व्हिच विल बी मोर हैंडी। दूसरा जो ये प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ सवाल था, एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन कि भाई सिविल सर्वेंट की जर्नी जो है वो के बाद लाइफ कैसे बदली है, मतलब सिविल सर्वेंट होने के बाद कैसे लाइफ बदली है। So and he has अमित ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए। One is the way society looks at you. Suddenly you become a person whom other want to emulate and follow. आपको सोसाइटी में सिविल सर्वेंट्स का जो परसेंटेज है बहुत कम है, स्पेशली जो हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट्स है, वो हजारों की संख्या में ही होगा पूरे इंडिया की हम बात करें तो एक 130 करोड़ पॉपुलेशन में सडनली एक छोटा सा ग्रुप है जो सभी एस्पायर करते हैं जहां पहुंचने के लिए, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ ऑनर, डिग्निटी जो है वो काफी हद तक मिलता है। तो वो एक अनपैरेलल्ड जो है कंपैरिजन है, वो बड़ा मुश्किल है उसको कंपेयर करना किसी भी बिजनेस से या किसी भी इनकम, बहुत सारा इनकम कहीं और से प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब
में आपका पैकेज अच्छा होगा, बट जो रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको मिलता है वो शायद नहीं मिल पाएगा। जहां तक इनकम की बात है, सैलरी की बात है, रिम्यूनरेशन की बात है, पर्क्स की बात है, तो एक सिविल सर्वेंट को एक रेस्पेक्टेबल इनकम, पर्क्स, एक रीजनेबल या रेस्पेक्टेबल कह सकते हैं, बिकॉज ये अपने आप में बहुत रिलेटिव टर्म है, तो वो मिलता है जहां पे आपकी लाइफ काफी सिक्योर और स्टेबल रहेगी। एंड स्पेशली जो कोरोना टाइम की उन्होंने बात कही, और वी ऑल आर विटनेस टू दैट प्रोसेस, कि कोरोना टाइम में अगर एक चीज समझ में आई है, वो समझ में आई है कि जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है, वो डिसरप्शन के टाइम शायद वो सिविल सर्वेंट्स या गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनको देखने को मिली। एंड सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और मैं ये मानता हूँ कि अगले कुछ सालों, अगले मे बी पोस्ट कोरोना, या फिर कोरोना जब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन खत्म हो रहा है, तो उस टाइम पर मुझे मानना है कि ये बात समझ में आनी चाहिए, और एस्पिरेंट्स को शुड टेक मोर एस्पिरेंट्स टुवर्ड दिस प्रिपरेशन, और एक जेन्युइन सिंसियर एफर्ट करें। तो ये सारी बातें अमित सर ने कही हैं, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ हिज बुक। अंडरस्टैंड करें कि जर्नी, पैसा तो बहुत लोग कमा सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपको एक रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन मिलेगा, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप जहां कुछ बोलोगे तो आपको लोग सुनेंगे, आप कहीं बोलोगे तो आपको, बिकॉज you reach a certain degree of we can say respect, या फिर एक certain degree of understanding। तो ये सारी चीजें हैं। एंड नाउ कमिंग टू अमित, हम लोग सेशन को यही क्लोज करते हैं, बट लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लेना चाहता हूँ, एंड सम स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने पुट करूंगा, एंड यू कैन आंसर देम। सो दीज आर अवेलेबल इन माय चैट। और पहला जो क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी कौन से बोर्ड का? एनसीईआरटी बेटा सीबीएसई बोर्ड का है, ये अमित सर भी सेम बात कहें, कुछ नया नहीं है। एनसीईआरटी बोर्ड का नहीं है, उस एनसीईआरटी एक कंटेंट है, उसको आपको फॉलो करना होगा। तो वो ncrt.nic.in पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, और एक स्टैंडर्ड मटेरियल जो कहीं मिल जाता है। किसी के भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, देन अमित सर विल आंसर देम, स्पेशली कोई आपके सवाल है तो। एनी क्वेश्चन यू हैव? किसी को सवाल है आप लोग के? जब तक आप सवाल टाइप के लिए, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको बता देता हूं। यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द इंटरिम पीरियड। पहला, हम लोग क्विकली समराइज करते हैं पिछले 30-35 मिनट को जो हमने बातें करी। वर्क योर बेसिक्स, अपने बेसिक्स को वर्क करिए, फोकस ऑन रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स प्रॉपरली, करंट अफेयर्स को और कंसोलिडेट करिए, थरोनेस उसमें लेके आइए, एंड साथ साथ जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, एमसीक्यूज के साथ साथ उनको सॉल्व करिए, लिंक विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन का लेवल ऑफ टफनेस आपको पता होना चाहिए, आपका फिल्टर स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए आपको बहुत एमसीक्यूज रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो ये सारे जो है इनपुट्स जो है रहेंगे। कुछ बच्चों के सवाल है एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे बेटा? उसके लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज, एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट एमसीक्यूज तो कहीं से भी नहीं मिलेंगे, अच्छे एमसीक्यूज के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। गुंजन का एक सवाल है, एनसीईआरटी कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए, न्यू या ओल्ड? तो मोस्टली न्यू पढ़ना है, कुछ हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटीज हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटीज की लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी आईएसएच की, या फिर हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बट आज सम जेन्युइन क्वेश्चन जो प्रिपरेशन जुड़े हुए हैं उनके बारे में पूछिए, जो सीरियस एस्पिरेंट पूछ रहे हैं, कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वी कैन ऑलवेज क्वेश्चन, यू कैन मेल अस एंड यू कैन टेक दोस क्वेश्चंस लेटर ऑन, बिकॉज़ मैं समझ सकता हूँ एकदम से सवाल दिमाग में आना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए, तो वेयर यू कैन गेट एनसीईआरटी? बेटा एनसीईआरटीज आप एनसीईआरटी वेबसाइट्स पे से ले सकते हैं आप। एक तृप्ति का सवाल है, हाउ टू एनालाइज न्यूज़पेपर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन व्हाइल रीडिंग? अमित इसके बारे में कुछ बताएंगे, हाउ टू एनालाइज न्यूज़पेपर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन व्हाइल रीडिंग? यस, हम लोगों ने इस पॉइंट पे काफी थॉट दिया, सोचा। द मोस्ट कोहेरेंट स्ट्रेटजी कि आप पहली बार यूपीएससी के सिलेबस को एक प्रिंट में लगा के अपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसको लगाएं, सिलेबस है क्या एक्चुअली, एंड द सिलेबस शुड बी ना टोटली इम्बेडेड इन योर माइंड कि क्या सिलेबस है, कौन सा टॉपिक किस चीज से रिलेट करता है। तो व्हेन यू हैव द थॉरो
knowledge of the syllabus and आपके syllabus fingertips पे होंगे, तो आपको न्यूज़पेपर फिल्टर करने में और अदर मटेरियल से नॉलेज निकालने में हमेशा आसानी होती है। तो द बेस्ट स्ट्रेटजी एंड क्विकेस्ट स्ट्रेटजी, सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए, इट शुड बी इन योर माइंड। ओके, सो ये बात मैं सबसे पहली बात मैं यही कहता हूँ जब भी तैयारी शुरू करते हैं कि सिलेबस को आपको, यू शुड नो द सिलेबस एट द बैक ऑफ योर हैंड। ठीक है, आपको पूरा याद होना चाहिए। तो सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग एंड एमसीक्यूज, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे भी आपका फिल्टरिंग डेवलप होगा। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस? चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। संडे को 21st ऑफ Feb को we have a strategy session for prelims preparation strategy, तो उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। आप लोग चाहें तो क्वेश्चंस जो हैं वो हमें मेल कर सकते हैं ऑन ISEJ मेल आईडी हमारे वेबसाइट पे मेंशन है, या फिर हमारी टीम जब कांटेक्ट करेगी आपको, उनसे आप शेयर कर सकते हैं अपने इनपुट्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच अमित फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल, बिकॉज ये वंडरफुल इनसाइट है। बहुत सारी बातें हम लोग कहते हैं इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस में, लेकिन जब आप लोग इस बात को कहते हैं तो वो बात और सर्टेन हो जाती है, और बच्चों को पता होता है विद सर्टेनिटी की जो सर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और वही हमें फॉलो करना है। ठीक है, सो जस्ट आपने जो इनपुट दिए वो काफी हद तक रेप्लिका है जो हम लोग पिछले कई महीनों से बता रहे हैं, लेकिन जब आपके थ्रू मोटिवेशन जो आता है वो अलग लेवल में बच्चों को आता है, एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड होप। ठीक है ना? थैंक यू सर। रेप्लिका होगा भी क्योंकि हम भी आपके स्टूडेंट्स रहे हैं। तो आई गेस आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड यू, एंड आई जस्ट से टू ऑल द स्टूडेंट्स, गो ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट हैव अ कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी। आपके पास मेंटर हैं ही फॉर एनी क्वेरी, पर्सनल, साइकोलॉजिकल। आई प्रमोद सर की बेस्ट चीज है कि हमेशा पर्सनल लेवल पे एज वेल एज साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको हेल्प करते हैं। और सिंस ही इज नॉट टू ओल्ड एंड ही इज वेरी, ना, अपनी प्रिपरेशन से बहुत ज्यादा लंबी दूरी नहीं हुई है, तो दे नो कि स्टूडेंट्स क्या फेस कर रहे हैं करंट टाइम में, rather than they are attached क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके साथ फील कर सकते हैं। he can walk in your shoes and give you a practical solution. So all the best to all the ISEJ students, and thank you sir for giving me this opportunity. Okay, thank you Amit, and I hope thanks for the kind words again, and हम लोग वही कर रहे हैं जो हम लोग करना चाहिए। So thanks again for the time Amit has given to all the aspirants, and good wishes to everybody, and let's, जो लोगों को भी और further detail चाहिए questions और preparation जुड़े हुए, let's meet on 21st of Feb, Sunday at 7:30. ठीक है, चलो, take care, God bless you. I'll close the session.